Assalamu alaikum. Welcome to our new series of lessons. And before going through the lessons, I would like my viewers to note my address, Bukhari Haamid 786 at the rate of gmail.com. And this is the new series based on the translation. Before, we introduced the translation of some famous Persian scripts like Dastur Salikin. But now onwards, as we promised our viewers, that we have translated some great books from great scientists like Albert Einstein, like Newton, like Stephen Hawkings. And this time I have a book. This is Stephen Hawking's book, Theory of Everything. Before this, I have translated the book Brief History of Time, the famous book of the same author. And you can, if you want to listen about a person who is the most genius after Albert Einstein, and you want to listen any name other than this is Stephen Hawking's. And I also translated the book that is Challenge to Impossible. This is Stephen Hawking, and you can see this is a biography of this. And this year I was fortunate enough to start the translation of this great book, and I completed. And I want to have two versions of my translations of every book. One is video format version and one is printed version. So this is new technology. This is the world of, I would say, that technical world wherein we shall have the contribution in the form of videos, in the form of video teaching, as well as in the form of print writing. That's the oldest one. So every book of mine would be based on the translation of another language, and translating any book of any great author is itself an asset for the language. So this book itself is the contribution. If this is translated in any language, and that's the contribution for that language and for the readers of that language. And it's not necessary that if you are good at physics or mathematics that you need to know English. No, you can be good at Urdu and you can read it. So I have translated this book into Urdu. And I translated this book on this diary, and this is very good diary, and it was gifted by one of my good students. I would say that this is 2013, the gift I taught her, and according to her, by teaching her for 3 days, she says that I qualified the examination. Then she gifted me this diary, and it was fortunate enough, and it's a lucky diary that I started the translation, and the name of student is Irani. I thank you for gifting me my very good student and sister. I thank you again, and I would like to read from the very book. And when we are talking about this translation, there is no scope for explanation, and this is exact translation of the book. So I would like to read the pages in translated form. The book is Theory of Everything by Stephen Hawking. And I will complete this book in some 15 video talks, and you can then listen, and you can listen again and again what exactly he started. And if you listen stepwise every lesson of ours, and you can imagine that you have been the student of physics since childhood, and you can know a lot about it. So I would like to start the reading of Theory of Everything by Stephen Hawking. It's a book based on lectures, 7 lectures, and you will see the exact translation of that book. बहुत मुद्दत पहले अरस्तु ने 340 BC में अपनी किताब On the Heavens में अपनी काबिलियत की बिना पर 2 बातों पर एक अच्छी बहस छेड़ दी। एक ये कि ज़मीन गोल है और न कि चपटी। पहली बात ये कि इसको यकीन हो गया कि चांद का इक्लिप्स जमीन की वजह से हो जाता है, जो सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है। चांद पर जमीन का साया हमेशा गोल था, और ये तभी सच होगा अगर जमीन गोल हो। अगर जमीन चपटी होती, दैट इज फ्लैट डिस्क, तो इस सूरत में इसका साया इलोंगेटेड और इक्लिप्टिकल होता, और ये तब तक होता जब तक हमेशा इक्लिप्स किसी खास वक्त वाक़या होता, और जब सूरज बिल्कुल डिस्क के सेंटर के ऊपर आ जाता। दूसरी बात, ये बहस इस पर मुबनी था कि यूनानियों को अपने सफरों की वजह से
ये पता थी कि पोल स्टार आसमान में नीचाई पर दिखता है जब इसको शुमाल के बजाय जनूब की ओर से देखा जाए। जो फर्क साफ साफ पोल स्टार को देखने में मिस्र और यूनानियों में आता था, अरस्तू ने इस बिना पर जमीन की गोलाई वाली लंबाई 4000 स्टेडियस बता दी। इस चीज का बिल्कुल पता नहीं कि एक स्टेडियम की लंबाई क्या थी, लेकिन ये 200 यार्ड्स हो सकती है। फिर अरस्तू की दी हुई लंबाई इतनी बन जाती है और इतनी बन जाएगी जो आज की दी हुई लंबाई या मापाई हुई लंबाई से दुगनी होगी। यूनानियों के पास तीसरी बहस इस चीज के बारे में थी कि जमीन जरूरी गोल होगी, इसलिए कि क्यों एक को पहले जहाज के बादन को उफक यानी कि होराइजन की तरफ आते दिखता है और तभी उसको आखिर पर जहाज का ढांचा नजर आता है। अरस्तू ने यह ख्याल किया कि जमीन एक ही जगह ठहराव में है यानी कि स्टेशनरी, और जो सूरज, चांद, सितारे और तारे है वो गोल रास्तों में यानी कि सर्कुलर ऑर्बिट्स इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। इसको ऐसा इसलिए लगा शायद इसके पीछे रूहानियत की वजूहात और रूहानियत की वजह है, और ये भी इसलिए माना कि जमीन पूरी दुनिया का सेंटर है और गोल घुमाव सबसे सही तरीका है यानी कि स्टेशनरी मोशन। इस तस्वर असलूब फिक्र को मुफस्सल तौर पर पहली सदी ईस्वी में टोलमी ने एक मुकम्मल कोस्मोलॉजिकल मॉडल में बयान किया। इस नमूने में जमीन बिल्कुल बीच में मौजूद है। इसके इर्द गिर्द 8 स्फीयर्स है जो खुद पर चांद, सूरज और 5 सितारे जो इस वक्त मालूम थे उस वक्त मालूम थे, जैसे मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न उठाए हुए है। ये सितारे प्लैनेट्स खुद छोटे छोटे दायरों में घूमते हैं और जो उनके स्फीयर से बंधे हुए हैं, ताकि इनको आसमान में अपने मुश्किल तरीन रास्तों का पता चले। जो सबसे बाहरी स्फीयर था ये फिक्स्ड स्टार्स को उठाए हुए था जो एक दूसरे के मुवाफिक एक ही पोजीशन में रहते थे, लेकिन आसमान में सब मिलकर घूमते थे। इस आखिरी स्फीयर के पीछे और क्या था, इसके बारे में कुछ भी ठीक तरह से वाजिया नहीं किया गया, लेकिन ये बिल्कुल इस दुनिया का तस्वुर नहीं था जो पूरी इंसानियत के मुशाहिदे में मौजूद था, यानी कि जो किसी आम इंसान को अपने मुशाहिदे में होता है। टोलमी के इस नमूने ने एक ऐसा सही निजाम दिया जिसमें कयास किया जा सकता था कि आसमानी चीजों की जगह आसमान में कहां पर है। टोलमी ने यह तस्वर किया और माना कि चांद का जमीन के गिर्द का घुमाव का रास्ता ऐसा है कि ये चांद को जमीन के नजदीक किसी खास वक्त में दुगना ले आती है, ये निस्बतन के और औकातों में, और इसका मतलब ये था कि चांद को कभी खुद को दुगना नजर आना था जो कि अक्सर नहीं होता। टोलमी को इस नुक्स के बारे में मालूम था, फिर भी अगर इस नमूने को पूरी तरह नहीं माना गया, लेकिन आम तौर पर सबों ने इसको माना। इस नमूने को ईसाइयों ने अपने इख्तियार में लेकर माना क्योंकि इसका मेल मजहबी किताबों की मालूमात से होता था। इसमें एक जबरदस्त खसूसियत ये थी कि इसने फिक्स्ड स्टार्स के स्फीयर के बाहर की दुनिया को खुला छोड़ा, जिसमें जन्नतों और जहन्नमों का तस्वुर किया जा सकता था। इसके बाद 1514 में पोलैंड के पादरी निकोलस कोपर्निकस ने एक बहुत आसान नमूना पेश किया। पहले डर की वजह से इसने इसका नाम छुपाकर पब्लिश किया, क्योंकि इसको ऐसा लगा कि कहीं इसको ईसाइयों के नजदीक काफिराना न ठहराया जाए। इसका तस्वुर था कि सूरज ठहराव में है,
बिल्कुल बीच में और इसके इर्द गिर्द जमीन और सितारे गोल गोल रास्तों में घूमते हैं। लेकिन कोपरनिकस के लिए ये बहुत दुख भरा था कि एक सदी गुजर गई तभी जाकर इस तस्वर को संजीदगी से लिया गया। तब दो इल्मी नजूमियों ने, एक जर्मन जिसका नाम जोनस केपलर और दूसरा इटली का गैलीलियो गैलीली था, जिन्होंने खुल्लम खुला कोपरनिकस की थ्योरी को सपोर्ट किया। अगरचे इसने गोल रास्तों के बारे जो कहा और वो इस वक्त के मुशाहिदा करदा रास्तों के नजरिया से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। 1609 में डेथ ऑफ एरिस्टोटेलियन एंड टोलेमिक थ्योरी बरसर आम आई। इसी साल में गैलीलियो ने रात के आसमान का टेलीस्कोप के सहारे मुशाहिदा करना शुरू कर दिया। यह टेलीस्कोप इस दौरान ईजाद भी हुई जब इसने सितारा जुपिटर का मुशाहिदा किया। गैलीलियो ने देखा कि इसके इर्द गिर्द छोटे सैटेलाइट्स या मून्स घूम रहे हैं। इससे इसने जाना कि ये जरूरी नहीं कि हर किसी चीज को जमीन के इर्द गिर्द घूमना है, जो अरस्तु और टोलेमी ने सोचा था। और इस पर भी बिलाशुबा यकीन किया जा सकता था कि जमीन दुनिया के बीच में ठहराव में है, और ये भी जाना जा सकता था कि जुपिटर की मून्स बिल्कुल सख्त तरीन रास्तों के जमीन के इर्द गिर्द घूमते हैं। इस तरह कोपरनिकस की थ्योरी बहुत आसान थी। इस दौरान केपलर ने कोपरनिकस की थ्योरी को मॉडिफाई करके बताया कि सितारे गोल रास्तों में नहीं बल्कि बेजवी रास्तों में, अंडे की शक्ल के मानंद वाले रास्तों में अब घूमते हैं। अब ऐसा लगता था कि मुशाहिदा किया हुआ ऑब्जर्वेशन के साथ मेल खाता है, जब तक कि केपलर का मानना था कि बेजवी रास्ते सिर्फ एक एडहॉक हाइपोथेसिस और इसके नापसंदीदा है, क्योंकि बेजवी कुछ दायरों से कम से ही परफेक्ट थे, और इसको अचानक पाना कि बेजवी दायरे मुशाहिदे के बिल्कुल मुवाफिक है, और इस वजह से इस तस्वर को बिल्कुल नहीं माना कि सितारे सूरज के इर्द गिर्द कशिश की वजह से घूम रहे हैं। इसकी तशरीह कुछ देर बाद 1687 में हुई जब न्यूटन ने प्रिंसिपिया मैथमेटिका नेचुरलिस कॉजी शाया कर दी। यह शायद सबसे अहम तसनीफ थी फिजिकल साइंस में, अकेले एक सबसे अहम तसनीफ थी जिसको कभी शाया किया गया था। इसमें न्यूटन ने न सिर्फ ऐसी बातों को उसूल बनाकर पेश किया कि कैसे बारी चीजें मकान ज़मा में यानी कि स्पेस और टाइम में गर्दिश करते हैं, बल्कि इसने इसको जांचने के मैथमेटिक्स के उसूल भी पेश किए। इसके अलावा न्यूटन ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के कानून भी दिए। इसमें यह कहा गया कि हर कोई चीज दुनिया में दूसरी चीज को एक ताकत के साथ कशिश करती है, और ये ताकत इतनी ही ताकतवर बन जाती है जितनी नजदीकी और जितना वजन इनका बढ़ जाता है। ये वही ताकत थी जिसकी वजह से कोई चीज जमीन पर गिर जाती है। ये दास्तान कि न्यूटन के सर पर एक सेब गिर गया, जिसकी वजह से थ्योरी सामने आई, ये बिल्कुल और यकीनन नाकाबिल कबूल है। वो सब कुछ जो न्यूटन ने कहा है कि ग्रेविटी का तस्वर इसको तब आया जब वो बहुत गहरी सोच में बैठा था, और इसको कभी कभार इस दौरान गिरते हुए सेब का ख्याल आया। आगे जाकर न्यूटन ने यह बताया कि इस ग्रेविटी के कानून के मुताबिक कशिश की वजह से चांद जमीन के इर्द गिर्द बेजवी दायरों में घूमती है, और इसी वजह से जमीन और दूसरे सितारे भी बेजवी दायरों में सूरज के गिर्द घूमते हैं। इसी तरह कोपरनिकस के नमूने और आसमानी दायरा या कुरा से नजात मिल गई, और उन सभी चीजों से जैसे कि ये तस्वुर था कि दुनिया की एक कुदरती सरहदी हद या खत्ता मौजूद है। फिक्स्ड स्टार्स के लिए ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने अपनी जगह बदल दी
जब ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द घूमने लगी या तस्वुर होने लगा, तो ये बहुत आम सा लगने लगा कि फिक्स्ड स्टार्स कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे सूरज की तरह है, लेकिन इससे बहुत दूर। लेकिन इससे एक मसला सामने आया और न्यूटन को ये लगने लगा कि ग्रेविटी के उसूल के मुताबिक तारों को एक दूसरे के साथ कशिश करनी चाहिए, और इससे ऐसा लगा है कि ये सब बेहरकत नहीं रह सकते, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो सारे किसी जगह एक नुक्ते की ओर गिर जाएंगे। 1691 के एक खत में न्यूटन ने रिचर्ड बेंटली को लिखा, जो उस वक्त के मुमताज दानिशवरों में शुमार किया होता था। न्यूटन ने इस नुक्ते पर बहस की कि ऐसा हो सकता था अगर कुछ महदूद तादाद में तारे होते, लेकिन इसने ये वजह बताई कि दूसरी ओर ये कि तारे लातेदार मौजूद है और ये कुछ हमवार तरीके से बेहद इलाके में फैले हुए हैं, और इस सूरत में वो गिर नहीं सकते क्योंकि इनके लिए कोई दरमियानी नुक्ता नहीं बनता जहां की ओर ये गिर जाए, यानी कि सेंटर। ये मिसाल या नमूना एक गड्ढे में गिरने जैसी है। जब एक का सामना ऐसा होगा जब वो लामहदूदी के बारे में बात करता है। इस लामहदूद दुनिया में हर कोई नुक्ता सेंटर माना जा सकता है, क्योंकि इस सूरत में हर किसी नुक्ते के इर्द गिर्द लातेदार तारे मौजूद है। So I would like not to extend this talk. I would like every chapter to be completed in 5 to 6 video talks, and in this first talk I would like to say you something about Stephen Hawking in one page. Who was Hawkins? That way you will be aware where was he born, early life education about Hawkins. And Stephen Hawking was born on January 8, 1942 to Dr. Frank Hawkins, a research biologist, and Isobel Hawkins. He had two younger sisters, Philippa and Mary, and an adopted brother, Edward. Though Hawkins' parents were living in North London, they moved to Oxford while his mother was pregnant with Stephen. Desiring a safer location for the birth of their first son, London was under attack at the time by the Luftwaffe. According to Hawkins, a German B-2 missile struck only a few streets away. After Hawkins was born, the family moved back to London, where his father headed the division of parasitology at the National Institute of Medical Research. In 1950, Hawkins and his family moved to St Albans, Hertfordshire, where he attended St Albans High School for girls from 1950 to 1953. At that time, boys could attend the girls' school until the age of 10. From the age of 11, he attended St Albans School, where he was good but not an exceptional student. When asked later to name a teacher who had inspired him, Hawkins named his mathematics teacher Dikran Tahta. And later, I would say Stephen Hawking was always interested in science. Inspired by his mathematics teacher, he originally wanted to study the subject at university. However, Hawking's father wanted him to apply to University College, Oxford, where his father attended. As University College did not have a mathematics fellow at that time, it would not accept applications from students who wished to read that discipline. Hawkins therefore applied to read natural sciences, in which he gained a scholarship. Once at University College, Hawkins specialized in physics. His interests during this time were in thermodynamics, relativity, and quantum mechanics. His physics tutor, Robert Berman, later said in the New York Times magazine, "It was only necessary for him to know that something could be done, and he could do it without looking to see how other people did it. He did not have many books, and he did take notes. Of course, his mind was completely different from all his contemporaries." Hawkins was passing, but his unimpressive study habits resulted in a final examination score on the borderline between first and second class honors, making an oral examination necessary.
Berman said, of oral examination, and of course the examiners then were intelligent enough to realize they were talking to something far more clever than most of themselves. And I would say that these are the only teachers who influence other teachers and the students. That was the case of Hawkins, who says that I was influenced by my teachers, and in particular the mathematics teacher. So I would like to extend all the talks because we have completed the translation of some famous books. So see you in our next talk. And before that, I would like my viewers again to note my address: Bukhari, Bukhari, Haamid, Hamid 786 @gmail.com. And I would like everyone to write to me. Maybe somewhere there is mistake in masculine, feminine, or something like singular, plural in language, and you can write to me, and we can edit in next videos, and we can be very thankful, and we can we assure you just giving your name if you just make mistakes out. And then see you in our next lecture. Goodbye. Thank you.